سورہ انفطار میں کل 19 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ یہ ایسی سورہ ہے جو مکی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ انفطار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں فرمایا اذا السماء انفطرت، اے انسانوں، یا قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ یہ بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا اذا السماء انفطرت، اے انسانوں، جب آسمان جو ہے پھٹ پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ پڑے گا۔ آسمان ایسا خوفناک ہولناک منظر ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ پڑے گا۔ آگے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ جو تم ستارے دیکھ رہے ہو، آج جس کو ہم ستارہ کہہ رہے ہیں، یہ اسٹارز جو ہے، ان کو جو دیکھ رہے ہو یہ کیا ہوں گے؟ جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، سب بکھر جائیں گے۔ آگے اللہ تیسری آیت میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندریں کیا ہوں گی پتہ ہے؟ جھانک مار رہی ہوں گی، اس میں اتنا زیادہ تپش ہوگا کہ وہ اپنے آپ میں سما نہیں سکے گی، وہ بھی بہہ پڑیں گی، پھٹ پڑے گی سمندریں۔ تو ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا اے انسانوں غور کرو کہ آسمان بھی جو کیا ہوگا؟ پھٹ پڑے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر جو ہے بہہ پڑے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قیامت ایسے آئے گی کہ جو قبروں میں ہوگا اسے نکال دیا جائے گا، باہر پھینک دیا جائے گا، نکال کر قبریں کھول دیے جائیں گے اس دن۔ ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا علیمت نفس ما قدمت واخرت، اے انسانوں، ہر جان، آج ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ اللہ نے اس کے تعلق سے فرمایا علیمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان اس دن جان جائے گی کہ اس نے اپنے جیتے جی کیا کیا تھا، اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا تھا، یعنی پیچھے کیا ہوا کرتوت اس نے جو کیا تھا وہ بھی جان جائے گا، اور جو نیک اعمال کر کے اس نے آگے بھیجا تھا اس کو بھی جان جائے گا۔ اسی علیمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان اس دن جان جائے گا کہ اس نے پیچھے کیا کیا تھا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے سیئہ جاریہ، یعنی برے کاموں کا بھی وہ جاری چلتا رہتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد بھی اگر کوئی برا عمل کر کے مرا ہو اور انسان اسی کے کام کو فالو کر رہا ہو تو اس گناہ کا جو عذاب اس پر بھی نازل ہوگا۔ اس کو جو جس انسان جو کر رہا ہے اس کو جتنا گناہ ملے گا اس کے ایجاد کرنے والوں کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اسی طرح جب کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے، جیسے ایک ٹیبل گاڑ دیا یا مسجد بنوا دی یا مدرسے میں دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ جب تک انسان اس کو کرتا رہے گا، وہ مر بھی جائے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ علیمت نفس ما قدمت واخرت۔ آگے اللہ نے ہم انسانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو، تمہیں اس رب کریم سے جو تمہارا ایسا رب ہے کہ جب تم کچھ کھانے نہیں پاتے تھے تو جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہاری پرورش اس طرح کی کہ تمہارے ناف کے ذریعے میں نے تم کو کھانا پہنچایا۔ جو ماں کھاتی تھی، جو تمہارے لیے میسر ہوتا تھا نرم کر کے، ایک ہموار کھانا غذا پیدا، تمہاری ماں کے پیٹ میں غذا تیار کر کے ہموار کر کے تم کو منہ سے نہیں کھا سکتے تھے تو ناف کے ذریعے تمہیں کھلایا تھا۔ میں نے تمہاری ایسی پرورش کی کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی تھے، اس پانی سے تم کو ایک حسن دیا، جمال دیا، خوبصورتی دی، بولنے کے لیے زبان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، تم کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ تم سے اچھا میں نے پورے روئے زمین پر کسی کو نہیں بنایا۔ لیکن میرے بندو، تمہیں مجھ سے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ ارے میں تو وہ رب ہوں کہ جب تم کو ہر جگہ سے دھتکار دیے جاتے ہو تو پھر میری بارگاہ میں آتے ہو تو میں تم سے گلا مل جاتا ہوں، میری رحمت تم سے بڑھ کر کے آ کر کے ملتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو، تمہیں اس مہربان رب سے کس نے غافل کر رکھا ہے؟ ہمیں اللہ مخاطب ہو کے فرمایا ارے تمہارا مہربان رب وہ ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں سنوارا اور ایسا سنوارا کہ اس میں کوئی بگاڑ نہیں رکھا، اعتدال میں تم کو رکھا۔ اللہ نے ہاتھ کو پیر کے برابر نہیں کیا، اللہ نے آنکھ کو سر کے برابر نہیں کیا، اللہ نے ناک کو سر کے برابر نہیں کیا، اللہ نے ناخن کو جو ہے ہمارے ہاتھوں کے برابر نہیں کیا۔ اللہ اگر بال نہ دیتا تو ہمارے اندر حسن و جمال کسی حال میں نہیں
आता। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दी। आगे फरमाया अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका, तुम्हें पैदा किया और ऐसी सूरत में पैदा किया कि एतदाल पैदा किया। वो उसी तरह हाथ दिया जिस तरह तुम में अच्छा लगता था, जिस तरह तुम्हारे अंदर खूबसूरती आती। नाखून दिया, बड़ा बड़ा नहीं दिया, खूबसूरती आने वाला नाखून दिया तुम्हें। पैर दिया, बेछज पैर नहीं दिया, जितना तुमको शोभा देना था उतना ही दिया। तुम्हारे आँखों में क्या दिए? भुआं, ये देखो हम भुएँ बोलते हैं ना, ये भुएँ दिया है। अगर ये ना भी देता तो उसके तख्लीक में कोई कमी आती? कुछ भी कमी नहीं आती। अल्लाह अगर हमारे सर में बाल नहीं देता तो उसके तख्लीक में कोई भी कमी नहीं आती, लेकिन बाल दिया हुस्न व जमाल के लिए, ताकि मेरा बंदा दिखने में खूबसूरत लगे। अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हमारे लिए अल्लाह ने हर चीज़ों को पैदा किया। और अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा, और तुम्हें हमने आखिरत के लिए पैदा किया है। तो दुनिया में तुम्हारे हमेशगी की जगह नहीं है। हमने तुमको हयात दी है, तो ये हयात एक दिन हम छीन भी लेंगे, तुम्हें मौत आएगी। जिसको भी जान मिली है वो जान एक दिन हमसे छीन जाएगी। तो अल्लाह ने इस आयत में ये सूरह इतनी, अगर इसको हम इसके तर्जमा के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, तो अगर गौर से पढ़ेंगे तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगेगा। इतना अल्लाह ने इसमें कशिश वाली बात बताई है कि अल्लाह कितना मेहरबान है। और देखिए अल्लाह अपना एहसान जता रहा है, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे बहके हुए क्यों रहते हो? फिर भी मेरी बारगाह से हटे हुए क्यों हो? मैं तो ऐसा रब हूँ कि तुमको जब कोई नहीं चाहता है, ऐसा रब हूँ तुम्हारे शहर से ज़्यादा करीब रहता हूँ मैं, तुम्हारे अपने आप से ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मुझसे तुम क्यों भागते हो? हमेशा भागते रहते हो। मैं तुम्हारे बेहतरी के लिए कहता हूँ, तुम आकर के मेरी इबादत करोगे उसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है अल्लाह का? अल्लाह ने तो फरमाया है अल्लाह उस समद, पढ़ते ना कुल अल्लाहु अहद अल्लाह उस समद, उसका मतलब होता है अल्लाह बेनियाज है, दोनों आलम से बेनियाज है। कोई भी उसकी इबादत नहीं करेगा, सब कोई उसकी नाफरमानी करेगा, तो उसकी रुबूबियत में ज़र्रा बराबर कुछ फ़र्क नहीं आने वाली है। अगर हम उसकी इबादत करते हैं तो इसमें हमारा फ़ायदा है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलका, अरे वो रब है जिसने तुझे पैदा किया, ठीक ठाक पैदा किया और एतदाल में रखा। आगे फरमाया फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबका, फिर ऐसा हुस्न व जमाल दिया कि रब ने जिस शक्ल में चाहा तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी तरतीब की उसने, उस रब ने जिसमें चाहा, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, शक्लें अलग अलग थी, लेकिन ऐसा कि एक दूसरे से मुमताज़ नज़र आता है। कोई अपने आप में कमी वाला नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हमको अल्लाह ने घटिया बनाया है, तो अपने से नीचे वालों को देखिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। अगर दुनिया के मामले में हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो अल्लाह की नाशुक्री कर बैठेंगे। अगर हम देखें कोई प्राइम मिनिस्टर को या किसी बड़े आदमी को, उसका इतना महल है, फोर्स है, गार्ड है, ये है वो, तो हम नाफरमानी करेंगे कि अल्लाह ने हमको इतनी नियामत नहीं दी। और हम अगर अपने से नीचे वाले को दुनिया के तबके में देखेंगे कि कोई इंसान इस ज़माने में भी ऐसा है कि दोपहर का खाना खाता है तो रात का खाना उसको मुयस्सर नहीं होता। हमारे घर में छत है, किसी का घर ऐसा भी है कि जो प्लास्टिक में रहता है, प्लास्टिक के छत में। किसी का परिवार ऐसा है कि जो 500 रुपये सिर्फ दिन का उसका है, कल का उसका क्या होगा कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उसके पास रुपया पैसा नहीं रहता, ऐसा भी है इंसान। तो जब हम दुनिया के मामले में उसको देखेंगे तो अल्लाह की शुक्र बजावरी करेंगे कि अल्लाह ने हमको बहुत दिया है। और दीन के मामले में अल्लाह ने कहा कि अपने से ऊपर वाले को देखो। वो इस तरह कि अगर हम किसी नमाजी, मुत्तकी और परहेजगार को देखेंगे तो हमारे दिल में जज्बा आएगा कि वो अल्लाह की इतनी फरमाबरदारी करता है, काश हम भी करते। और नाफरमान को देखेंगे, है वो तो इतनी अल्लाह की नाफरमानी करता है फिर भी जी रहा है, तो हम भी नाफरमानी करेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया के मामले में अपने से नीचे को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखो। तो अल्लाह ने इस आयत सूरह अल-फतार में फरमाया, सूरह अल-फतार की आयत नंबर 8 में फरमाया फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबका, तुम्हारे रब ने तुमको एक बेहतरीन जिस शक्ल में चाहा तुमको पैदा किया, तुम्हारी तरतीब बनाई। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला आगे फरमाता है आयत नंबर 9 में, कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, लेकिन मेरे बंदो हरगिज़ तुम ऐसा हो कि तुम यौम जज़ा के दिन को झुटलाने वाले हो। यौम जज़ा का मतलब होता है क़यामत का दिन। क़यामत के दिन को झुटलाते हो तुम लोग। अगर तुमको ये यकीन होता कि क़यामत आएगी, हमारा हिसाब लिया जाएगा, तो तुम इस तरह गफलत में नहीं पड़ जाते। अगर कोई हमारे घर कल मेहमान आएगा तो हम ऐसे ही नहीं रह जाएंगे जिस तरह आज हैं, उसके लिए इस्तकबाल के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे।
सब्जी लाएंगे, गोश्त लाएंगे, उसके लिए इंतज़ाम करेंगे। तो जब हमको पता है कि मौत आएगी, हमारा हिसाब लिया जाएगा, तो हम एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तैयारी करता है कि नहीं? हर स्टूडेंट तैयारी करता है कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये दुनिया भी हमारे एग्ज़ाम गाह है, हमारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, यहाँ तैयारी करने का मौका दिया गया है। जितनी अच्छी तैयारी करेंगे वहाँ रिजल्ट इतना अच्छा आउट होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदो तुम लोग ऐसा हो कि क़यामत के दिन को झुटलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और ऐसे हमने तुमको बनाया कि तुम्हारे ऊपर हमने हाफिज़ मुकर्रर किया। और उन हाफिज़ीन का नाम क्या है? किरामन कातिबीन। जो तुम कोई अच्छा काम करते हो तो उसको भी वो नोट करता है, जब तुम गलत काम करते हो तो उसको भी वो नोट करता है। आज अगर हम किसी मॉल में जाए या रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो डर से कोई काम नहीं, गलत काम नहीं करते हैं, कोई सामान नहीं उठाते कि कैमरे में कैद हो जाएंगे, है ना? कैमरे में कैद हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे पीछे 2 कैमरा लगा देता है। एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। हमेशा हर हाल, सो जाओ तब भी वो तुम्हारे साथ है, घर में रहो, अकेले में रहो, लोगों के पास रहो, हमेशा कैमरा लगा हुआ रहता है। तो हम दुनिया के कैमरे से जितना ज़्यादा डरते हैं, हम अल्लाह के उस फरिश्तों से जो किरामन कातिबीन है उससे नहीं डरते। वो कहीं भी जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ रहता है आप CCTV कैमरे के अंदर में। तो हम डर जाते हैं कि कोई गलत अमल नहीं करेंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे। कोई चोरी नहीं करेंगे, कोई बुरी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ने हमारे पास 2 फरिश्ता ऑलरेडी हमेशा के लिए लगा रखा है, तो हम कहाँ डरते हैं उस 2 फरिश्तों से? हमारा अमल ऐसा है कि हम जितना दुनिया से डरते हैं, यकीन के साथ जानिए कि हम उसका अल्लाह और उसके रसूल के ना खौफ करते हैं ना अल्लाह से डरते हैं। इतना अल्लाह ने फरमाया है कि वो जो फरिश्ते हैं वो ऐसे हैं कि यालमूना मा तफअलून, जो तुम करते हो वो लोग उसको जानते हैं और जान करके उसको लिख लेते हैं। अल्लाह ने आगे फरमाया है कि जो इंसान नेक होता है, फिर जो अच्छा अमल करता है, तो इन्नल अबरार लफ़ी नईम, कि जो बेहतरीन इंसान होगा, जो नेक अमल करने वाला होगा, उसके लिए ऐसी जन्नत होगी कि वहाँ कोई गम की जगह ही नहीं है। एक बेहतरीन ऐशो आराम और उसरत की जगह होगी जो नेक अमाल किया होगा। और आगे आयत में अल्लाह ने फरमाया व इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, और जो बदकार होगा, जो फासिको फाजिर होगा, जो बदकार गुनाहगार होगा, उसके लिए जहन्नम का आग, वहाँ खौलनाक आग होगा, उसके लिए अजाब की जगह हो जाएगी वही एक कब्र। यस्लौनहा यौमद्दीन, और बदले वाले दिन में उसको ढकेल दिया जाएगा। किसके लिए? जो बदकार होगा, जो बेअमल होगा। हमारे लिए दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। हम जैसा यहाँ अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वहाँ वैसा ही फल अता करेगा। और ऐसा जहन्नम की आग ऐसी होगी, अल्लाह ने फरमाया है वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, कि वो ऐसी जगह होगी कि वहाँ से कभी छुटकारा नहीं दिया जाएगा, उसको उसी में रखा जाएगा हमेशा हमेश के लिए। और जो नेक लोग होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उसको हमेशा उसी नियामत और ऐशो आराम की ज़िंदगी में रखेंगे, कभी उस जगह से उसको नहीं निकालेंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यरीसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून, और कमा क़ाल, कि जो लोग जन्नत के मेहमान होंगे उसको उस जन्नत में हमेशा हमेश के लिए रखा जाएगा, कभी उससे निकाला नहीं जाएगा। और जो जहन्नम का हकदार होगा, जो जहन्नम का मुस्तहिक होगा, उसे जहन्नम में हमेशा हमेश के लिए रखा जाएगा, कभी नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा यौमुद्दीन, ऐ मेरे बंदो तुम्हें क्या पता कि क़यामत का दिन कैसा दिन होगा? हमें कुछ पता है? सुने होंगे वाक़यात में कि पसीना इतना ज़्यादा होगा कि इंसान उस पसीने के बदबू को आज सूंघ ले तो मर जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा यौमुद्दीन, ऐ मेरे बंदो तुम्हें पता क्या है कि क़यामत का दिन क्या होगा? फिर अल्लाह ने ताकीद के साथ उसी सूरह में फरमाया सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, ऐ फिर मेरे बंदो तुम्हें क्या पता कि क़यामत का दिन कैसा होगा? अल्लाह ने आखिर में फरमाया यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, ऐ मेरे बंदो सुनो, क़यामत का दिन ऐसा होगा कि कोई जान किसी जान के इख्तियार में नहीं होगा। कोई नहीं होगा कि हम इसको जन्नत में लेके चले जाएंगे। सब कोई उस वक्त नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि ऐसा दिन होगा वो कि कोई ये नहीं कहेगा कि आओ हम तुमको एक नेकी दे देते हैं, तुम मेरा एक गुनाह ले लो। कोई ऐसा नहीं कहने वाला होगा। हर जान अपने आप में पड़ी होगी, हर इंसान को अपना फिक्र होगा। ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, कोई इंसान दूसरे इंसान का जो है उस वक्त मालिक नहीं होगा, उस वक्त किसी के हाथ में कोई इख्तियार नहीं होगा। और वो ऐसा दिन होगा वल अम्रु यौमा इज़्निन लिल्लाह, कि वो ऐसा दिन होगा, ऐसा ये होगा, मंजर होगा कि वहाँ से अल्लाह का हुक्म चलेगा, उसके अलावा किसी की हुकूमत नहीं चलेगी।